Yeah. We started new chapter in the previous class, and that is physical quantities and units, as you can see on the screen. And today we are having a lecture number 3 of physical quantities and units. तो पिछली क्लास में क्या-क्या हुआ है? Let me go through it in a quick recap. That we talked about section 1. I told you what physical quantities are. Physical quantities require numerical magnitude and unit. ठीक है? इसके बाद I told you or I showed you around 60 reasonable estimates, and all of these reasonable estimates have to be remembered, have to be memorized. मैंने आपको एक तरीकेकार बताया था, how can you memorize that 60 reasonable estimates? Just divide the reasonable estimates into 8 months. 8 months have 32 weeks. So if you divide 60 reasonable estimates into 32 weeks, you'll be having an average of 2 reasonable estimates in each week. Let me show you how the reasonable estimates were. So these were the reasonable estimates. Okay, beta? And if you divide them into week wise, you'll be having 2 reasonable estimates to be memorized each week. इस तरह आप आराम से reasonable estimates को याद कर सकते हैं. Then we talked about base quantities, जिन्हें fundamental quantities भी कहते हैं. And we talked about each and every fundamental quantity have a unit known as base unit, जिनकी list हमने यहाँ पे discuss की थी. And then I taught you how base units of any quantity can be found. Like ये पूरा तरीकेकार, you need to remember the formula, then you will simplify the quantity up to the base quantities, then you will replace the base units of every base quantity, and you will make sure no base unit is in the denominator. Okay? This is how we solve a lot of quantities. Then हमने थोड़े से past paper देखे थे, और फिर मैं आपको एक सेपरेट फाइल पे लेकर गया था जहां पर हम लोगों ने more than enough past paper solve किए थे. If you missed that class, don't worry about it. Go to the YouTube channel, the Physics Unleashed. You will find the recording of these 2 lectures. Okay, beta? Now, right now, we have to move ahead और हमें आज की डिस्कशन करनी है आज. Let's move ahead. चलो. So, आज की क्लास यहां से शुरू हो रही है. Okay, let me see. आ गए हैं सारे. बेटा, I am opening the rights to rename yourself. Kindly अपना पूरा नाम लिखें. Aisha, kindly write your whole name so that it's easy for us to have a track on attendance. Why Ayan is not in the class? सर एक मैसेज कर दिएगा. ठीक है, चलो. So I am here teaching you how to form a physical equation. चलो आगे बढ़ते हैं. So this is an equation. ठीक है, और इस इक्वेशन को हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा? फॉर्म करना है. अच्छा, कैन एनीवन सेंड मी अ मैसेज टू द अकाउंट chat-Muzammad so that I can see if your messages are popping up in front of my screen? Iman, can you do that? Ji, Taha, it's working. Walaikum assalam. Hi, Iman. Chalo. Okay, so first of all, we have to make sure we simplify the equation. तो देखें simplification कैसे होगी equation की. हर equation में जब आप ये देखते हैं, ये क्या चीज है बेटा? That is the sign of proportionality. When you remove the sign of proportionality, आपके पास equals to के साथ constant आता है. ठीक है, ये देखो. And here I am putting constant as k, while
लेंथ रेज टू द पावर x, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल रेज टू द पावर y, मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? वंस योर इक्वेशन इज सिंप्लीफाइड, अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ब्रेक डाउन करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो बेस यूनिट टाइम का क्या होता है? सेकेंड। k does not have any unit, k is यूनिटलेस कांस्टेंट, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, तो हम इसको इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे। लेंथ एज अ यूनिट मीटर, मीटर की पावर x, g इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, और इसका यूनिट है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल का ms-2, and this is power y। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, तो इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आया। ठीक है, जैसे ही हमारे पास इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आ गया, उसके बाद वी रिप्लेस द क्वांटिटीज विद बेस यूनिट्स। टाइम की जगह सेकंड, लेंथ की जगह मीटर, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल की जगह एक्सेलरेशन का बेस यूनिट ms-2, जो पावर है वो एज इट इज लिख दी। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई मोर, एंड किस तरह? देखें यहाँ पे दो यूनिट है, मीटर एंड सेकंड। सो हियर in the on the left hand side we only have second, so what do we have to do? We have to include meter as well। कैसे करेंगे मीटर? Like this। so if you put 0 on the power of any quantity or any unit, it means it's 1, क्योंकि हर एक क्वांटिटी जिसकी पावर 0 होती है इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मीटर की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, तो इस 1 को बस मैंने इस तरह दिखा दिया, जस्ट टू मेक श्योर जो सेट ऑफ यूनिट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर है वही राइट हैंड साइड पर हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मीटर की पावर x, ब्रैकेट जो पावर है वो इसको दें, मीटर की पावर y, एंड ये वाली पावर अब इसको मिलेगी, सेकेंड की पावर -2y। बेसिस सेम पावर एड्स, तो क्या होगा, मीटर की पावर 0, सेकंड की पावर 1, जो लिखे ना लिखे इट्स अप टू यू, दिस इज सेम पावर, सेकंड की पावर -2 है। ठीक है बेटा, सो दैट इज हाउ हमने इस काम का पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू अहेड? अब हमें आंसर्स निकालने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, एज मिनिमम एज पॉसिबल अननोन किसके पास है? सेकंड के पास या फिर मीटर के पास? मिनिमम अननोन किसके पास है? सेकंड्स के पास या मीटर के पास? अननोन आर x एंड y, या सेकंड के पास ओनली एक अननोन y। तो पहले हम सेकंड को डिस्कस करते हैं। तो इक्वेटिंग इंडाइसेस, व्हाट डज इट मीन बाय इक्वेटिंग इंडाइसेस? जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उनकी आप पावर्स को इक्वेट कर दें इफ द बेसिस आर सेम। तो सेकंड की पावर 1 और यहाँ पे सेकंड की पावर -2 है, तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज 1 equals to -2y। I have equated the indices or powers of second on the left and right hand side। ठीक है, in this way I can find out the value of y। तो y is equals to -2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y is equals to -half। अच्छा, one more thing बेटा, if you are taking the class for the first time, so if you are on the demo, you want to get registered, just send the message to WhatsApp to Sir Salman Ashmi, he'll be able to register you। Okay, so the number is on the screen। Chalo, so we have found out the value of y like this। Okay, now
लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, ताकि हम इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लें। चलो, तो यहाँ पर मीटर की पावर है x plus y, and here meter has a power 0. What I'll do, when I equate indices of meter, it will be equal to 0 equals to x plus y. Because on the left hand side, meter has power 0. On the right hand side, meter has power x plus y. Okay, beta? Cool. So we have already found out the value of y. So x will be minus y, because here it is positive, इधर जाएगा तो negative हो जाएगा. Now y itself has value minus half. And that is how you get the value of x as minus will become plus, so half. Okay. Now we have found out the both unknowns. हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली. अब लास्ट स्टेप है इस इक्वेशन को फॉर्म करने का. हमें जो इक्वेशन गिवन थी, सॉरी, ये जो इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई की थी, इसमें बस x की जगह जो x की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे. लाइक दिस, t इक्वल्स टू k l की पावर x. x की वैल्यू क्या है? ये हाफ. एंड g की पावर y. y की वैल्यू क्या है? ये माइनस हाफ. ठीक है. अब दिस माइनस हाफ, अगर मैं g को डिनोमिनेटर में भेज दूं, दिस विल बिकम प्लस हाफ, लाइक दिस. ठीक है. एंड आई कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन एज this. ठीक है. So does anyone know when we replace power half what will come? कौन सा हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप होगा? माइक्स आपके अनम्यूट हुए हुए, यू कैन contribute in the class or you can ask any question you want. There is square root. Yes, square root. So that is how the last step is we are showing that t equals to k under root L over G is the final answer. तो इस तरह हमने इक्वेशन पूरी की पूरी फॉर्म कर ली. We were given this raw equation in which there it was not clear what is the value of x, what is the value of y, और हम लोगों ने पूरी इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व किया, and we ended up having this equation. You know what this equation is? In A2 you'll be having this equation as the time period of simple pendulum. तो सिंपल पेंडुलम को टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की ये इक्वेशन है जो अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई की है. अंडरस्टूड? ओके मान. ओके ताहा. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर कॉन्क्रीट, मैं एक आध इक्वेशन आपको और करवाता हूँ. चलो, यहाँ पे एग्जामिनर हैज ऑलरेडी डन द फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाई. तो यहाँ पे देखें उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं दिया है. उन्होंने इक्वेशन दी है v is the speed equals to k, lambda is the wavelength, e is Young's modulus, and rho
is density. ठीक है? ओके, चले आगे देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन. तो स्पीड has the base unit ms minus 1 equals to k does not have any unit, it's a unitless constant. Wavelength, wavelength का base unit क्या होगा? What is the base unit of wavelength? Its length. Base unit should be you guys there? What should be the base unit for wave length? जी बेटा. The base unit? Base unit of wavelength. मीटर होता है ना? Yes, meter. बेटा kindly Okay. answer as soon as you can, because आपके आंसर्स की बिना पर हमारी क्लास जिंदा रहती है. ठीक है? वरना मैं तो पूरा दिन ही बोलता रहता हूँ. है. So meter as the base wavelength as the base unit meter, power x है तो power x लिख दी. We have formulated the base unit of Young's modulus. Let me show you where. For Young modulus, yeah, this is here. We talked about the base unit of Young modulus. Kgm minus 1, S minus 2. So I'm just copying the Young modulus unit as it is. So for Young modulus, it's Kg m minus 1, S minus 2, power y. And density as the base unit Kg m minus 3, power d. ठीक है? अब what we need to do, we have to give power to kg meter second, kg meter. ठीक है? तो देखते हैं. साथ साथ ये देखें, मीटर की पावर x, kg की पावर y, और यहाँ पे मीटर की पावर माइनस y, सेकेंड्स की पावर माइनस 2y, kg की पावर z, मीटर की पावर माइनस 3z. ठीक है? तो एज यू कैन सी kg मीटर सेकेंड, यहाँ पे kg नहीं है, तो we'll do the same thing. We'll put the kg but with power 0. तो मीटर सेकेंड इनवर्स kg की पावर 0 इक्वल्स टू बेसिस सेम पावर ऐड, तो क्या होगा? x माइनस वाई माइनस 3z. देन सेकंड इज ए स्टैंड अलोन, तो उसको एज इट इज लिख देंगे, सेकंड की पावर माइनस 2 and kg बेसिस सेम पावर ऐड y प्लस z. ठीक है? दैट इज हाउ हमने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया. देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी वी हैव मीटर सेकंड एंड केजी, राइट हैंड साइड पे भी वी हैव मीटर सेकंड एंड केजी. नाउ दिस इज द टाइम वी डू इक्वेटिंग इंडाइसेस. अंडरस्टूड बेटा? चलो, यहाँ तक क्लियर है? देख लिया किस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है. ओके, सो किसके पास एज मिनिमम एज पॉसिबल अननोन है? सेकंड के पास, मीटर के पास, या केजी के पास? सेकंड्स. तो we will first equate the indices of second, यानी -1
इक्वल्स टू -2y. ठीक है, and y will be equal to माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा 1/2. We have found out the value of y. Now next क्या होना चाहिए? We know y. कौन सा यूनिट नेक्स्ट लेके चले? kg. जी आयशा, जी कहा kg. तो 0 इक्वल्स टू y प्लस 0. ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा? -y एंड माइनस y की वैल्यू क्या है? हाफ. So this is how we have found out the value of g. Now we are only left with, yes, it's minus z. Now we are only left with meter. So meter की power 1, so 1 equals to x minus y minus 3z. तो चलें देखते हैं. वन इक्वल टू x माइनस y माइनस 3z. ठीक है, तो हमें चाहिए x, तो 1 प्लस y प्लस 3z हो जाएगा. मतलब ये जो है, यहाँ माइनस से इधर जाके प्लस, यहाँ माइनस से इधर जाके प्लस. ठीक है बेटा, तो नाउ x इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या थी? हाफ, और प्लस 3, b की वैल्यू क्या थी? -हाफ. ठीक है, सिंप्लीफाई करें, माइनस प्लस माइनस, तो x इक्वल टू 1 प्लस हाफ माइनस 3/2. तो आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 माइनस 3/2. एलसीएम ले लिया मैंने. ठीक है, तो यहाँ पे 2 बनाना था, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया. सिंस तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो एक दफा लिख दिए. ठीक है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस 3/2. क्या आंसर आया? 0/2. यानी x की वैल्यू आ गई 0. ठीक है, so this is how we found out the final value of z, x, y and z. तीनों की हम लोगों ने फाइनल वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है. कूल, चलिए अब आगे देखते हैं. अब क्या करना है बेटा? द इक्वेशन वी मेड और द इक्वेशन वी आर गिवन विद, इसमें एक्स वाई जी की वैल्यूज को हमें पुट करना है. चलो, तो v इक्वल्स टू के लैम्डा की पावर x. x क्या निकाला है हमने? 0. ठीक है, तो लैम्डा रेज टू द पावर 0. यंग मॉडुलस एस पावर y. y क्या है हमारे पास? हाफ. एंड डेंसिटी पावर z. z क्या है हमारे पास? -हाफ. ठीक है, नाउ एनीथिंग विच हैज पावर 0 इक्वल्स टू 1 वो हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे पावर माइनस है, नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो our equation will become v equals to k, लैम्डा हम लिख नहीं रहे, v की पावर हाफ, और पूरी की पावर नीचे जाके v प्लस का हाफ हो गई. ठीक है, we can also write this down as a whole power half
and whole power half हटाएंगे, you'll end up having under root. Okay, under root e over 4. So this is the final way to simplify this equation. ठीक है, तो हमने पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई कर ली. Let me know if you have any questions up till now. सही, cool. ठीक है बेटा, तो लेट्स मूव अहेड. एंड अब मैंने आपको फॉर्मिंग अ फिजिकल इक्वेशन के एक इजी सवाल करवा दिया, एक थोड़ा सा लेंथी सवाल करवा दिया. यू गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ टू फॉर्म अ फिजिकल इक्वेशन, हाउ टू सिंप्लीफाई अ फिजिकल इक्वेशन. थोड़ा सा आपको पास्ट पेपर का टच दिखाता हूँ. Yeah, how the questions are being asked in past papers. Okay. The base units use base unit to determine the value of k. अच्छा, ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसका हम लोग पहले बात कर चुके हैं. ये सवाल था, तो क्या बोल रहे हैं? Here F is force, rho is density, V is speed. जबकि B और K कांस्टेंट्स हैं जिनके कोई यूनिट नहीं है. ठीक है, चलो. तो बोल रहा है यूज बेस यूनिट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. ओके, उल्टे हाथ पे वी हैव फोर्स, तो आई विल राइट द बेस यूनिट ऑफ फोर्स एज kgms minus 2. तो kgms minus 2. b is having no units, ऊपर बता चुका है वो हमें. r is radius, तो radius has base unit मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी. Density has base unit kgm minus 3, and speed has base unit ms minus 1. पावर k है तो k लगा दिया. ठीक है, नाउ फॉर थिंग फर्स्ट, kg से kg कैंसल्ड आउट. ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ ms minus 2. यहाँ पर m स्क्वायर m minus 3, या इसको भी ओपन कर लें. नहीं नहीं, m स्क्वायर m minus 3 will become m minus 1. ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? ms minus 1 की पावर k. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? नहीं सॉरी, वैसे ही लिखा. तो m s minus 2, ये वाला जो m minus 1 है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. और अब इसको अगर मैं ऊपर लेकर आता हूं तो दिस विल बिकम ms minus 2, और ये ऊपर आके प्लस में हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली m स्क्वायर s minus 2, जैसे सेम हो गई ms minus 1 की पावर की. ठीक है, एंड फाइनली I can also write this as ms minus 1 की पावर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, और हमारे पास क्या बचा? ms minus 1 की पावर 1.
तो ऊपर अभी हम लोगों ने सीखा जब हमारे पास बेसिस सेम होती हैं वी कैन इक्वेट द पावर. So we have same basis, we can equate power. The value of K is this is a lengthy way. You can also do this by looking at only one unit. Like for example, अगर मैं यहाँ पे K की वैल्यू डाल देता तो क्या होता अगर मैं इस स्टेप से आपको आगे दिखाऊं. Just a minute. Yes. तो एक और तरीका हो सकता है अगर मैं इस स्टेप से दिखाऊं आपको. इस स्टेप से तो यहाँ पे हमारे पास ms माइनस टू अपॉन m माइनस वन. और अगर मैं पावर दे दूं m की पावर k s की पावर माइनस k तो मैं सिर्फ और सिर्फ s को भी देख सकता हूँ. ठीक है. तो s को देखकर हम बेसिस सेम है पावर इक्वेट कर दें. तो माइनस टू इक्वल टू माइनस के. तो k किसके बराबर हो जाएगा 2. दिस इज ऑल्सो द वे टू हैव योर आंसर इन अ शॉर्ट वे. तो माई वे I mean, my job is to tell you the both ways. आपको जो आसान लग रहा है आप ये वाला स्टेप फॉलो ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर लें, आप इस तरह एक्सप्लेन कर दें. अंडरस्टूड बेटा. तो जस्ट टू मेक दिस मोर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको अलग से कॉपी कर रहा हूँ so that आपको समझने में आसानी हो. ठीक है. So this is how I showed you two ways through which you can do this question. Understood? तो दो अलग अलग तरीकेकार आपको बताएं. Cool. तो हमारा एक और पार्ट हो गया. In that part we talked about how to deal with the powers, how to find out the values of power. So I'm remembering जब हम लोग पेपर 1 के सवाल सॉल्व कर रहे थे we encountered some of the questions which were lying under the domain of how to find out unknown powers. ठीक है. चलें पहले उन्हें देख लेते हैं. So we have to move towards past papers. Paper 1 that is. Yes. Look at question number 10. If you are attending the class for the first time, let me tell you, I recommended the past papers of Read and Write publication. They are economical, budget friendly, and अच्छे खासे उनके अंदर टॉपिकल पास पेपर्स होते हैं विद ऑल द वेरिएंट्स. ठीक है बेटा. तो आगे बढ़ते हैं. द ड्रैग कोफिशिएंट CD with a number with no unit. तो ड्रैग कोफिशिएंट CD है. इट्स बेसिकली अ नंबर जिसके अंदर कोई यूनिट नहीं है. It is used to compare the drag coefficient of different cars at different speeds. And CD की equation आपको given है. Where F is the drag force, rho is the density, A is the cross-sectional area, V is the speed. What is the value of N? सारी क्वांटिटीज हमें समझा दी हैं और बोल रहे हैं what is the value of N. चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. तो N चाहिए ना, यानी N वाला जो भी है उसे सब्जेक्ट बना लें पहले. यानी v raised to the power n equals to 2f upon CD rho a. ठीक है. इन्होंने बोला है CD के कोई यूनिट नहीं है. तो राइट दिस इक्वेशन
as speed as base unit ms minus 1, पावर n है तो n रखा, फोर्स एज बेस यूनिट ms माइनस 2, 2 के कोई बेस यूनिट नहीं है तो 2 को नहीं लिखा, डेंसिटी एज बेस यूनिट kg m minus 3, and area as base unit m square, kg से kg cancel out, what we are left with m की पावर n s की पावर माइनस n को ऊपर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखें, m पहले नीचे देख लें, -3 + 2 -1, और -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +1, एक m ऑलरेडी मौजूद है तो m + m विल बी m स्क्वायर, और s - 2 ऐसे ही रखता है। नाउ इट्स अप टू यू, आप किसको लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मीटर को लेके चलता हूँ तो क्या होगा बेटा, मीटर की पावर n, मीटर की पावर स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर इक्वेट्स, ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 2। दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ n as 2। अंडरस्टूड। क्लियर है यहां तक। जी बेटा, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। सर आप ये एक दफा ब्रीफ में वापस समझा सकते हैं मुझे। बेटा सबसे पहले जो आपको रिक्वायर्ड है, आपने उसे सब्जेक्ट बनाया, मैंने उसको इधर डाला, इसको इधर डाला, ठीक है। देन सी डी हैज नो यूनिट, 2 भी नंबर है, इसके भी कोई यूनिट नहीं होंगे, तो वी आर लेफ्ट विथ फोर्स, डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो स्पीड के बेस यूनिट ms - 1, फोर्स के बेस यूनिट kg ms - 2, डेंसिटी के बेस यूनिट kg m - 3, एरिया के बेस यूनिट m स्क्वायर, kg से kg कैंसल आउट। अब क्या होगा, m की पावर -3 + 2 m की पावर -1, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो m की पावर +1 और एक ये है m, इट विल बिकम m स्क्वायर। अब मैंने इन दोनों को, बेसिस सेम है, ऑन बोथ एंड्स पावर इक्वेट कर ली, ठीक है। तो सर आपने सेकंड से क्यों नहीं लिया? आप सेकंड कर लें, इट्स अप टू यू, -n इक्वल टू लेकिन ऑप्शन नहीं -2, दिया, वो तो सही भी है। आंसर सेम आएगा, ओह ठीक है। राइट राइट, सही समझ गया। यस। तो ये एक क्वेश्चन कल हमारे आई मीन पिछली क्लास में हमारे पास आया था, तो हमने उसे डील कर लिया। एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, द मैक्सिमम theoretical power of the wind turbine is this, where rho is the density, a is the area, v is the speed, k is a constant with no unit, what is the value of n। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, v raised to the power n, जिसके साथ n है उसे सब्जेक्ट बना लेंगे, लाइक दिस, v raised to the power n equals to p upon k rho a। Now v
इज ms माइनस वन पावर n। ये क्या है हमारे पास? पावर। तो पावर के बेस यूनिट हमारे पास क्या आते हैं बेटा? पावर के बेस यूनिट वी हैड kg m स्क्वायर s माइनस थ्री। ठीक है, तो पावर इज kg m स्क्वायर s माइनस थ्री अपॉन k हैज नो यूनिट, डेंसिटी kg m माइनस थ्री हो गया, और एरिया क्या हो गया? m स्क्वायर। तो बेटा आप क्या होगा? kg से kg कटेगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद m की पावर n s की पावर माइनस n इक्वल्स टू m माइनस थ्री प्लस टू विल बिकम माइनस वन। तो माइनस वन ऊपर जाएगा, इट विल बिकम प्लस वन। तो प्लस वन m और टू विल बिकम m क्यूब s माइनस थ्री। तो आपकी मर्जी है, आप किसी दो को इक्वेट करवा लें। अगर मैं इन दो को इक्वेट करवा रहा हूँ तो क्या होगा बेटा? बेसिस सेम है, बोथ एंड्स पे पावर इक्वेट हो जाएगी, n will be equals to 3। दैट इज हाउ तुम्हारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ऑल क्लियर? क्लियर सर। ओके, हाँ एक सवाल और देखते हैं, फिर होमोजीनियस इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। So when we talk about question number 19, it's the speed v of leaving the tube depends upon the change in pressure and the density. Speed is given by the equation. ये equation आपको given है, where k is a constant that has no unit. What is the value of n? N की value क्या है? ठीक है, so if you want to find out what is the value of n, क्या करेंगे देखना। तो ओके, इस दफा n दोनों पे आ रहा है, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लेकर चलते हैं। v है ms माइनस वन स्पीड, k हैज नो यूनिट, k को नहीं लिखे। प्रेशर के यूनिट क्या होता है? वो प्रेशर ये रहा, kg m माइनस वन s माइनस टू। प्रेशर की जगह प्रेशर की यूनिट m माइनस वन s माइनस टू। तो भले प्रेशर हो, चेंज इन प्रेशर हो, इट मीन्स द सेम थिंग। अपॉन डेंसिटी क्या है? kg m माइनस थ्री होल पावर n, और kg से kg कैंसिल्ड आउट। ms माइनस वन इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस थ्री जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस थ्री। ऊपर माइनस वन ऑलरेडी मौजूद है, तो m माइनस वन और m क्यूब विल बिकम m स्क्वायर। ठीक है, एंड s माइनस टू पावर n। क्या होगा? m s माइनस वन इक्वल टू पावर दे दें, m की पावर टू n, s की पावर माइनस टू n। एंड किसी भी एक को आप इक्वेट कर लें, जैसे मैं भी इसको और इसको इक्वेट कर रहा हूँ। तो व्हेन बेसिस आर सेम ऑन बोथ एंड्स, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। यहाँ पे पावर है वन और यहाँ पे पावर है टू एन, तो एन किसके बराबर आ गया? वन ओवर टू। ठीक है, ए इज योर आंसर। ठीक है बेटा, यस था वन ओवर टू। कूल।
जी आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मिंग ऑफ फिजिकल इक्वेशन की एक प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली। पास्ट पेपर्स भी मैंने आपको दिखा दिए। तो आई गेस अब कोई सवाल आता है इसका। लेट मी गिव यू लेट मी गिव अ क्विक ग्लिम्स। कोई सवाल आ रहा है इसके ऊपर क्या नहीं? कुछ सवाल अभी मुझे दिखे हैं, मैं वो करवाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। पहले रोज कर लें। ओके, चलो देखते हैं। वी हैव 8 मिनट्स, तो पास पेपर दी करें तो ज्यादा बेटर है, नया टॉपिक शुरू नहीं करते। ओके, विच पेयर ऑफ क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम एसआई बेस यूनिट? कौन से पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैं जिनके एसआई बेस यूनिट सेम नहीं है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई बेस यूनिट सेम होंगे क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। Electromotive force talks about work done per unit charge, as well as electric potential difference also talks about work done per unit charge, जो कि आपने O levels में पढ़ा था। Similarly, stress और pressure की भी बेस यूनिट सेम है। ये देखें, सर डी होगा। दिस इज, अच्छा देखता हूँ, दिस इज प्रेशर एंड वेयर इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कहाँ गया? बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोनों क्वांटिटी सेम है। प्रेशर इज आल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस इज आल्सो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये भी सेम है। अच्छा, आयन इज सेम डी। नहीं सर, सी है, मुझे डी नहीं लग रहा। दोनों अच्छा, मुझे डी लग टॉर्क रहा, क्या सी होता लग है? रहा है। एफ इंटू डी। और वर्क भी क्या होता है? एफ इंटू डी। दोनों के फॉर्मूला सेम है, तो ये भी हाँ, बेस सी है। सेम बेस यूनिट होंगे। अब स्प्रिंग कांस्टेंट इसके बराबर होता है बेटा ए इक्वल टू एफ ओवर ई। और मोमेंट क्या है? एफ इंटू डी। टॉर्क और मोमेंट एक ही चीज के दो अलग नाम है, तो देखें फॉर्मूला डिफरेंट है यहाँ पे, तो बेस यूनिट भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। दैट मीन वी हैव a correct answer. ठीक है, now which list contains only SI base unit? SI base unit, एम्पेयर इज एसआई बेस यूनिट, केल्विन इज जूल नहीं है, ग्राम नहीं है। कितने हैं एसआई बेस यूनिट हमारे सिलेबस में? मीटर, सेकंड, एम्पेयर, केल्विन, केजी, बस इनके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर, एम्पेयर, मीटर, कूलम, सेकंड, केल्विन, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, किलोग्राम। तो डी इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इन पांचों के अलावा हम कंसीडर नहीं करते कि कोई बेस यूनिट होगा एज फार एस इज कंसर्न। यस, डी था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। द स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का सिंबल है।
needed to fracture a particular solid is given by this equation आपको given है, where E is the Young modulus, D is the distance, K is the constant with no units. What is the SI base unit of gamma? ये जो gamma है ये वाला इसका SI base unit है. पहले तो हमें क्या करना होगा, gamma को सब्जेक्ट बनाना होगा. उसके लिए we have to do squaring on both sides ताकि वो रूट से बाहर आ जाए. Equation becomes s square equals to k square gamma e upon b. अब k के कोई यूनिट नहीं है तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा हमें k के कोई यूनिट नहीं पुट करना है. स्ट्रेस के बेस यूनिट प्रेशर वाले ही होते हैं तो के जी m माइनस वन एस माइनस टू ये होते हैं प्रेशर के. यस के जी m माइनस वन एस माइनस टू. स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो. गैमा की बेस यूनिट आपने निकालना है. अच्छा एक काम करें पहले इसे सिंप्लीफाई करें. गैमा क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर डी अपॉन. चलो गैमा सिग्मा स्क्वायर डी क्या है हमारे पास डिस्टेंस तो मीटर और ई क्या है यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस के बेस यूनिट भी कैसे होते हैं हमारे पास प्रेशर वाले ही होते हैं के जी एम माइनस वन एस माइनस टू. तो बेटा ये देखें ये पूरा के जी एम माइनस वन एस माइनस टू के साथ एक के जी एम माइनस वन एस माइनस टू कट गया. स्क्वायर है ना तो ये खत्म हो गया. अब हमारे पास क्या बचा गैमा विल बी के जी एम माइनस वन और एक एम बाहर है तो प्लस वन एस माइनस टू. गैमा इज के जी एम माइनस वन प्लस वन पावर जीरो हो गई. एनीथिंग विच हैज पावर जीरो इक्वल्स टू वन वो लिखते नहीं है एस माइनस टू. तो हमारे पास गैमा के बेस यूनिट आ गया है के जी एस माइनस टू विच इज बी. ठीक है बेटा. तो हम लोगों ने एक और एमसीक्यू देख लिया के जी एस माइनस टू. ठीक है तो टाइम टू टाइम हमें इस चैप्टर में एज मच एज पॉसिबल पास्ट पेपर्स करने हैं सो दैट वी कैन बी मोर श्योर अबाउट हाउ टू डील विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम है. आज ए लेवल्स का रिजल्ट आया है एंड इट वाज बिलो द एक्सपेक्टेशंस जस्ट बिकॉज जो कोविड की वजह से सिनेरियोस थे एग्जामिनर हल्का हाथ रख रहा था उसने हल्का हाथ नहीं रखा एंड चेकिंग या रिजल्ट मेकिंग जो है वाज अ बिट स्ट्रिक्ट. थ्रेशोल्ड भी इतना कुछ खास लो नहीं था. आई वुड से हाई ही था थ्रेशोल्ड. तो द स्टूडेंट विद whom I expected A उसका B या C आया है. ठीक है this makes us into a very miserable situation that we have to work hard from the beginning. Better teacher, good student, enthusiasm to learn with discipline. इन तीन चीजों का हमें शुरू से ख्याल रखना. ठीक है बेटा. तो आपने जो पढ़ रहे हैं जैसा पढ़ रहे हैं you have to remember this, you have to revise this. Keeping that knowledge in mind, you have to do the past papers. Okay, this is how we can excel in our AS or A levels. So this is where I end the class. If you guys want to have any question regarding the class, you can ask. Else we can leave the class. No questions, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Cool.
चलो ख्याल रखिएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।